Radhe Radhe, I am Avni from Chero by Avni and I welcome you all to my channel. Okay, so today I have a really interesting and like cutie topic. So the topic for today's video will be how will your future spouse confess their love to you for the first time. I know all my pookies, my lovely people watching this video are really eager to know, and I am really eager to tell you that how will your future spouse confess to you. We'll add that what will lead them to confess to you, what will trigger them, and how will it be. It will some additional messages and whatever will be coming in. I'll just speak whatever the guidance, whatever the channelized message will be coming. Okay, so without any further ado, let's get in the video. You'll get the screenshots and please choose your pile from there. Hello my dear pile 1. So if you have chosen pile 1 as your pile, we'll see that how your future spouse is gonna confess their love to you. And please mind it, this is a general reading, so please take what resonates and leave what doesn't. Okay, so I've already shuffled the cards. The cards that came are the Star card, such a lovely card, Queen of Cups, Six of Wands, the Magician, the Tower card, the Queen of Wands, and the Eight of Swords. And at the end of the deck we have Lovers. Lovely. Okay, so my dear pile 1, फर्स्ट ऑफ ऑल आई रियली वॉन्ट टू टेल यू कि जब आपके पर्सन आपके बारे में सोचेंगे दे विल फील स्पार्क्स, एक काइंड ऑफ बटरफ्लाई फीलिंग. ठीक है, बटरफ्लाइज फीलिंग, एक काइंड ऑफ स्पार्क, एक एनर्जी वाइब फील होती है ना. व्हेन वी थिंक अबाउट समवन वी फील लाइक ओ माय गॉड सो क्यूट. लाइक एक वो वाली एनर्जी आपके पर्सन में ज़रूर होएगी जब भी वो आपके बारे में सोचेंगे. एंड नो मैटर यू आर अ बॉय, यू आर अ गर्ल, you know how it resonates with you, your future partner is going to see you as someone who is really really pretty, handsome, something like that. उनको ऐसा देख के लगेगा कि आपसे ना एक काइंड ऑफ एक वाइब आती है, एक ऐसे मैच फील होता है एंड यू ग्लो. यू नो व्हेन समवन इज रियली डीपली इन लव विद यू, नथिंग एल्स मैटर, सिर्फ आप ही मैटर करते हो. सो आपके पर्सन के लिए स्टार कार्ड यही शो करता है कि आपके पर्सन को ऐसा लगेगा कि नो वन, आप नहीं तो कोई नहीं, something like that. And with the Queen of Cups and Six of Wands energy, I feel like that कि आपके person ना first of all they'll admire you from afar. Like when you'll be in company, आप अपने friend के साथ होगे, आप अपने किसी भी group में होगे, कुछ भी काम को वगैरह कर रहे होगे, they'll see कि आपकी personality अलग से shine होकर आती है rather than like even working in a team. फिर भी आपकी एक पर्सनैलिटी है, आपका भी एक ओपिनियन मैटर करता है एंड एवरीथिंग. योर पार्टनर, योर फ्यूचर स्पाउस विल फील कि आपसे ना एक अलग वाइब आती है, एक अलग ग्लो, एक ऑरा ही अलग है आपका. सो आपके फ्यूचर स्पाउस को फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल थिंक कि अब तो मुझे कन्फेस करना ही पड़ेगा बिकॉज यू विल हैव अ लॉट ऑफ सूटर्स अराउंड यू. बिकॉज दे विल थिंक कि हाँ आपको परसू करना चाहते हैं लोग. बिकॉज जब हम एक अगर आपसे आगे कोई बात भी कर लेगा देन दे विल फील पॉजेसिव और जेलस अबाउट इट कि ऐसे कैसे बात कर ली, ठीक है, तो ऐसे नहीं, थोड़ा माइंड वाली फीलिंग आ गई है. ठीक है. एंड विद द सिक्स ऑफ वॉन्ड्स आई फील लाइक दैट yes, your future spouse will confess to you in front of people. Yes, first of all they'll want to show off that you are theirs. Second of all they'll want to make it extravagant and show off kind of thing, that they'll want कि सबको पता लगे कि yes they are your future spouse is confessing to you. और आपके future spouse की एनर्जी मुझे इतनी क्यूट लग रही है ना. they'll be like कि कोई आपके साथ बुरा ना करे, आपके साथ सारा अच्छा हो, आपकी सारी ड्रीम्स पूरे हो. तो they'll try to do everything they can, like जो भी उनके हाथ में होगा वो करने की कोशिश करेंगे. मुझे बहुत क्यूट एनर्जी आ रही है आपके फ्यूचर स्पाउस से बिकॉज दे विल थिंक कि आपकी एनर्जी, आपकी वाइब ही अलग है. आप जब भी अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ होगे विद द एट ऑफ स्वॉर्ड्स, इट इज लाइक जब वो सिंगल होंगे या फिर आप उनकी लाइफ में नहीं होगे. ठीक है, आप उनकी लाइफ में हो बट उन्होंने अभी तक कन्फेस नहीं करा है, देन दे विल थिंक कि मेरी लाइफ को डिटैंगल ही आप करते हो, उसमें एक एलिमेंट जैसे लिविंग एलिमेंट आप ही डालते हो. तो आपके फ्यूचर स्पाउस को ऐसे लगेगा कि इट्स टाइम फॉर देम टू कन्फेस टू यू, टू लॉक इन दिस फीलिंग, सो दैट
some other person doesn't take you away from your future spouse. तो वो वाली फीलिंग मुझे दिख रही है आपके फ्यूचर स्पाउस के अंदर. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ लाइक आपकी वाइब, आपकी कंपैटिबिलिटी आपके फ्यूचर स्पाउस से इतनी मिलेगी देन दैट यू विल बी अमेज्ड. यू विल लाइक कि इतना अच्छा मेरा किसी के साथ कंपैटिबिलिटी मैंने कभी सोची नहीं थी कि होगी. एंड ये कैसे हो जाता है कि मेरी कंपैटिबिलिटी किसी के साथ है, आप खुद अमेज हो जाओगे उस बात को लेकर. एंड विद द टावर कार्ड एंड द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स विल बी लाइक, इट इज़ लाइक कि व्हाट विल ट्रिगर, ऐसे क्या ट्रिगर होगा दैट दे हैव टू कन्फेस टू यू. ओके, सो इट विल बी लाइक दैट यू विल हैव सम काइंड ऑफ सूटर एंड उनको पता लग जाएगा कि एट दिस अदर पर्सन, दिस अदर मैन और वुमन इज इंटरेस्टेड इन यू एज वेल. एंड इट विल बी लाइक कि अगर अब उन्होंने कन्फेस नहीं करा, अगर अब उन्होंने अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर ही रखा, तो ये चांस आपके साथ एक लाइफ बिल्ड करने का चांस उनके हाथ से निकल जाएगा. एंड वो चीज़ वो मिस नहीं करना चाहते थे. वो अपनी उस एनर्जी में होंगे जहाँ पे वो काइंड ऑफ हेजिटेट कर रहे होंगे कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आगे क्या होगा, कहाँ होगा. बट एज सुन एज दिस अदर पर्सन कम्स इन, एंड जहाँ पे उनको ऐसे लगा कि उनके हाथों से बात निकलती जा रही है, दिल कन्फेस. एंड इट इज़ नॉट लाइक दैट इन प्रेशर कि कोई और आ गया है इसलिए आपके पर्सन ने कन्फेस करा, नहीं. बट इट विल लीड ये चीज़ एक प्रॉपर एक मूवी बनती है, एक प्रोसेस होता है. तो ये प्रोसेस एकदम से अगर आपका पर्सन यहाँ है और आप यहाँ हो तो एकदम से यहाँ ले जाएंगे कि हाँ आपको कन्फेस करना उन्होंने. और आपकी फ्यूचर स्पाउस फॉर श्योर वो एक ट्रिगर वाली फीलिंग से उनको होगा कि नहीं आपको कोई लेके ना जाए एंड आप हमेशा उनके साथ रहो. तो वो वाली फीलिंग आपकी फ्यूचर स्पाउस में मुझे दिख रही है. एंड that's how they'll confess to you. एंड मुझे ज़रूर दिख रहा है कि your future spouse is going to confess you in front of people, in front of your friends, so that everyone knows that you are theirs. Something like that will happen for sure. Okay, one card flew out. So the strength card flew out. Let me shuffle some more cards. How will file number 1 future spouse confess their love to them? फर्स्ट ऑफ ऑल they'll see you as someone जो कि बहुत ही अपने अंदर आपको होगा कि हाँ आपको अपनी लाइफ में आप सेट हो गए, आपको गोल्स पता होंगे अपनी लाइफ में. एंड जहाँ पे भी आप हो गए आपको पता होगा कि क्या करना है. आपके फ्यूचर स्पाउस को हमेशा ऐसा लगेगा कि आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे अगर आपको पता है ना कि ये चीज़ मुझे चाहिए, देन आप समहाउ अपना वे बना लेते हो और आप कर लेते हो. तो आपके फ्यूचर स्पाउस को ऐसा भी लगेगा कि आप में इतनी स्ट्रेंथ है, आप इतने पावरफुल हो एंड सम एवरीथिंग लाइक दैट. बट ये एनर्जी मुझे बहुत दिख रही है कि इवन इफ़ यू आर स्ट्रॉन्ग, इवन इफ़ यू हैव एवरीथिंग, इवन इफ अगर आपको चीज़ें मिल जाती हैं, यू आर नॉट दैट स्ट्रॉन्ग फ्रॉम इनसाइड. एंड ये आपकी फ्यूचर स्पाउस को फील होगा. इट बी लाइक कि आप किसी डर में रहते हो कि ये चीज़ अगर मैंने इसके लिए मेहनत नहीं करी, इसके लिए हार्डवर्क नहीं करा ना, तो ये चीज़ मेरे हाथों से निकल जाएगी. एंड आपकी फ्यूचर स्पाउस को ये चीज़ फील होगी कि येस आप उनको बेशक उन्होंने कन्फेस नहीं किया होगा, बट एक वाइब और एक एनर्जी से आपको पता लग जाएगा कि दिस पर्सन इज इंटरेस्टेड इन मी. एंड आपके फ्यूचर स्पाउस को भी पता होगा कि आप भी इंटरेस्टेड हो, बट ये जो थोड़ा प्लेफुलनेस वाला पीरियड, फ्लर्टीनेस वाला पीरियड चल रहा होगा बिफोर कन्फेसिंग. तो आपको फ्यूचर स्पाउस को आपको पता लग आपके फ्यूचर स्पाउस को आपको पता लग जाएगा. आई एम सॉरी, आई डोंट नो व्हाई आई एम सेइंग लाइक दिस. तो वो चीज़ आ रही होगी कि आपके फ्यूचर स्पाउस को पता लग जाएगा कि आप भी उनको खोने से डरते हो, आप किसी रिजल्ट से बहुत डरते हो. ठीक है, क्योंकि बिकॉज आपने हमेशा सीखा यही है कि मुझे तो हर चीज़ बस मेहनत करती रहेगी, करते रहना पड़ेगा, तभी मिलेगी वरना नहीं मिलेगी. तो वो काइंड ऑफ माइंडसेट आपका फ्यूचर स्पाउस चेंज करेंगे. ठीक है, आपके फ्यूचर स्पाउस को पता लग जाएगा कि आपको रीअश्योरेंस की ज़रूरत है. आप ओवरथिंक बहुत जल्दी कर लेते हो. तो वो ओवरथिंक को कूल डाउन करने के लिए, काम डाउन करने के लिए आपके फ्यूचर स्पाउस बार बार आपको रिपीट करवाते रहेंगे, आपको याद करवाते रहेंगे येस ही और शी लव्स यू अ लॉट. एंड ये मुझे ऐसे प्रिटेंड वाली एनर्जी नहीं दिख रही. दे विल बी जेन्युइनली कंसर्न फॉर यू. दे विल बी लाइक कि हमेशा आपने स्ट्राइव हार्ड वर्क किया है कि हाँ मुझे कोई ना कोई चीज़ चाहिए. बट इट विल लाइक कि आपके फ्यूचर स्पाउस अब आपको वो चीज़ शो करेंगे कि आपको भी कोई परस्यू कर सकते हैं, आप भी किसी के लिए मैटर करते हो. एंड विद द पेज ऑफ कॉइन्स आई फील लाइक दैट आपके फ्यूचर स्पाउस आपके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज यहाँ वहाँ से, आपके फ्रेंड्स से, आपके कलीग से, आपकी फैमिली से ट्राई करेंगे लेने की कि आपको क्या पसंद है, आपको क्या नहीं पसंद, आपके लाइक्स डिसलाइक्स. ठीक है, आपको कौन सी मूवी टाइप पसंद है, के ड्रामा, सी ड्रामा, जो भी आपकी वाइब है. ठीक है, मेरे को आपकी बहुत लाइक
बाहर से आप बहुत ज़्यादा टफ दिखने की कोशिश करते हो, और आप करते भी हो क्योंकि आपको ऐसा लाइक कि अब इस वर्ल्ड में ऐसे ही रहना पड़ता है, बट अंदर से यू आर लाइक अ सॉफ्टी। तो आपके फ्यूचर स्पाउस को ना हर एक चीज़, एक एक चीज़ आपके बारे में ना ये हाँ वहाँ से गैदर करने में बहुत मतलब उनको एक ये होगा कि उनका टास्क है कि हाँ उन्होंने इधर उधर से इन्फॉर्मेशन आपके बारे में गैदर करनी है, तभी यू विल फील कि हाँ आपके फ्यूचर स्पाउस एफर्ट्स डाल रहे हैं आपको जानने में, आपके बारे में और चीज़ें जानने में, ताकि आपको वो अपना बेस्ट दे सकें, आपको लव फील करवा सकें। तो आपके फ्यूचर स्पाउस की ये एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है कि दे विल कीप ऑन ट्राइंग। बेशक अगर थिंग्स जैसे कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं या टाइम नहीं दे पाते हैं, योर फ्यूचर स्पाउस विल कीप ऑन ट्राइंग टू मेक टाइम फॉर यू। अगर आप टाइम नहीं निकाल पा रहे हो तो ही और शी विल अंडरस्टैंड यू, ठीक है। एंड जहाँ पे आप थोड़ा जैसे आप अपनी एनर्जी, अगर आपको ऐसा लगेगा ना कि आपको पहले स्टार्टिंग में थोड़ा ऐसा भी लगेगा कि आपके फ्यूचर स्पाउस ना ओवर पावर करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज आपने कभी वो चीज़ फील नहीं करी होगी कि जहाँ आके कोई फोर फ्रंट पे आके आपके लिए केयर करे, आपके बारे में सोचे, सब कुछ करे, वो चीज़ आपने फील नहीं करी होगी। तो जब कोई ऐसा कर रहा होगा तब आपको अजीब सा लग रहा होगा, और पहला थॉट आपका यही होगा कि इस पर्सन चाहता क्या मेरे से, व्हाट डज शी वांट, व्हाट डज ही वांट फ्रॉम मी। तो वो वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। सो यू विल डाउट एंड यू विल पे हार्ड टू गेट लाइक रियली, आप बहुत ज़्यादा अपने फ्यूचर स्पाउस को तंग करने वाले हो बिफोर दे विल कन्फेस टू यू, बिकॉज यू विल बी लाइक आई एम नॉट पेइंग अटेंशन टू यू, कीप ऑन थिंकिंग दैट वेदर आई एम इंटरेस्टेड इन यू और नॉट। तो वो एनर्जी मुझे कुछ दिख रही है आपकी कि आप ना चुप चुप के अपने ना फीलिंग्स, मतलब जाएगा अगर आप अपने फ्यूचर स्पाउस को ग्लांस से ऐसे देख भी रहे हो कि चुप चुप के देख भी रहे हो, आप अपने फ्यूचर स्पाउस को पता नहीं लगने दोगे कि आप देख रहे हो, बिकॉज दिल बी लाइक कि अगर उनको पता लग जाए देन दिल मेक फन ऑफ यू। तो वो वाली क्यूट वाली एनर्जी मुझे दिख रही है कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस को बहुत ज़्यादा टेस्ट करने वाले हो। आपके फ्यूचर स्पाउस तो 1% भी आपको टेस्ट नहीं करेंगे जितना आप टेस्ट करने वाले हो अपने फ्यूचर स्पाउस को, बिकॉज यू विल बी लाइक कि अगर हमें को कोई पर्सन चाहिए तो दैट विल बी लाइफ लॉन्ग। यहाँ पे मुझे ये थर्ड पार्टी और ये सब सिचुएशनशिप, ये शिप वो शिप नहीं चाहिए। यू विल बी लाइक कि आई वांट अ पीसफुल रिलेशनशिप, एंड लाइक आप भी अपनी लाइफ में आपके फ्यूचर स्पाउस इंडिविजुअली भी ग्रो करें, आप भी इंडिविजुअली ग्रो करो, और आप दोनों एज अ कपल भी दोनों साथ में ग्रो करो। तो वो वाली एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है। एंड इट इज़ लाइक कि आपके हाथ में होगा कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको कैसे ट्रीट करेंगे। एज इन कि अगर आप अपने फ्यूचर स्पाउस के लिए कुछ भी लाइक थोड़ा सा भी एफर्ट्स दिखाओगे ना, अगर आप 10% भी एफर्ट्स दिखाओगे तो आपके फ्यूचर स्पाउस स्टार्टिंग में आपको परसू करने की एनर्जी में इतने ज़्यादा एफर्ट्स डालेंगे कि देन यू विल बी लाइक कि आपको उस चीज़ की आदत पड़ जाएगी, एंड आपको वो अटेंशन ना अच्छी लगने लग जाएगी। तो जब नहीं भी मिलेगी तो वो थोड़ा काइंड आपको ऐसे लगेगा कि ऐसे कैसे हो गया, पहले तो बहुत ज़्यादा अटेंशन देते थे अब अटेंशन नहीं देते। तो वो ये छोटी मोटी बातें ना ऐसे ही रहेगा कि हाँ आपके फ्यूचर स्पाउस रियली लव्स यू, बट इट विल बी लाइक कि यही चीज़ों से पता लगेगा कि हाँ आप भी उनके अंदर उतने इंटरेस्टेड हो जितने फ्यूचर स्पाउस आपके इंटरेस्टेड है। एंड लाइक आपका प्रपोजल मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी में ऐसा दिख रहा है कि सारों को पता लगने वाला है कि हाँ कि योर फ्यूचर स्पाउस इज योर बॉयफ्रेंड और योर हस्बैंड, वाइस वर्सा, वाइफ और गर्लफ्रेंड। स्टार्टिंग में तो जैसे आप कन्फेस करोगे लव, तो इवन इफ इट विल बी अरेंज मैरिज, वो हम अलग वीडियो में देखेंगे, लाइक यू विल गेट टू नो ईच अदर बिफोर गेटिंग मैरिड। तो वो फेज में आप कह लो कि आप जो भी उनको अपना नेम देना चाहो, ठीक है, वो चीज़ में आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले हैं, बिकॉज दे फील लाइक यू आर अ कैच, एंड उनको ना आपसे देखकर एक अलग से एक पीसफुल वाइब आती होगी आपके फ्यूचर स्पाउस को। तो एक बार उन्होंने जब ठान लिया ना कि हाँ मेरे को ये चीज़ चाहिए, मेरे को ये चीज़ करनी है, एंड ये ऐसे नहीं होगा कि उनको आपसे पीसफुल वाइब आती है तो वो आपके पीछे पड़ेंगे, एंड आपके पीछे पड़ेंगे सॉरी, तो वो आपको परसू करेंगे, ठीक है, आपको बोलेंगे कि नहीं 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 नहीं, गिव मी अ चांस, गिव मी चांस, गिव मी चांस। तो वो वाली काइंड ऑफ फीलिंग लग रही है मेरे को। बट आपके फ्यूचर स्पाउस ने ना काफ़ी कुछ लाइफ में स्ट्रगल्स हैंडल किए होंगे, काफ़ी उनको सेटबैक्स आए होंगे, बट आप ऐसे पर्सन उनको मिले होंगे जहाँ पे आप उनको ना सेल्फ पिटी की जगह एक ऐसी फीलिंग देते हो जहाँ पे उनको ऐसा लगे कि येस यू वर करेजियस, यू डिड इट, यू वर ब्रेव, आप उस चीज़ से बाहर निकला है। उनको सेल्फ पिटी से बहुत ज़्यादा ना नफरत हो गया आपके फ्यूचर स्पाउस को, तो लाइक कि क्या मेरे को लोग आके ना बेचारा बेचारी करते रहते हैं, मैं बेचारा बेचारी नहीं हूँ, लाइक आई एम वट आई एम। मैंने अपने पैरों पे खड़े होने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, एंड आप उस चीज़ को इन अ गुड वे लेते होगे कि हाँ कि अगर आपकी कोई कॉन्वर्सेशन हो रही होगी और आपके फ्यूचर स्पाउस ऐसे नॉर्मली आपसे बात कर रहे होंगे, देन यू विल बी लाइक कि ओ माय गॉड वाओ, लाइक कितना टफ टाइम से आप कितनी अच्छी तरह निकले। इंस्टेड ऑफ सेल्फ पिटी, उनको विक्टिमाइज करने के बजाय
आपका पर्सपेक्टिव ही अलग था। तो उसी पॉइंट से आपके फ्यूचर स्पाउस विल स्टार्ट फॉलोइंग इन लव विद यू, एंड वहाँ से आपको एक क्वीन की एनर्जी में, एक ब्यूटीफुल एनर्जी में, एक लवली एनर्जी में आपके फ्यूचर स्पाउस आपको देखने लग जाएंगे। एंड योर फ्यूचर स्पाउस ना उसी वेव में होंगे, उसी सोच में होंगे कि हाँ लाइक यू नो वायलिन बज रहे हैं ठीक है, वैसे हो रहा है, फूल हिल रहे हैं, तो वो वाली काइंड ऑफ फीलिंग में होंगे। बट they'll be like some kind of person, other person too, who will be interested in you, and before this other person confess, your future spouse will like, I'll have to confess, I'll have to give my all to you, because आपके फ्यूचर स्पाउस आपको खो नहीं सकते हैं, ठीक है। लाइक दिल फाइट विद यू, दिल फाइट फॉर यू विद यू, कि आपने दूसरे पर्सन को अटेंशन भी कैसे दे दी, तो वो चीज़ भी मुझे आपके फ्यूचर स्पाउस की दिख रही है। डू वी हैव एनी अदर मैसेजेस? हाँ, एंड when your future spouse will confess to you ना, you'll be like okay, तो उसमें आपको अपनी एक्सपेंशन की एनर्जी, आपको ग्रोथ दिखेगी आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ। आपको ऐसा लगेगा कि इमोशनली ही तो ठीक है, बट एज इन जैसे अगर हम लाइफ के पर्सपेक्टिव से देखें, सारे पर्सपेक्टिव्स आपके टिक मार्क हो जाएंगे, एंड इमोशनली आप भी इन्वेस्टेड हो गए अपने फ्यूचर स्पाउस में इतना ही जितना आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे, बट आप शो करने वाले नहीं हो। ये चीज़ मुझे फॉर श्योर दिख रही है। एंड उसके बाद ना आहिस्ता आहिस्ता आप दोनों एज अ कपल तो सही, बट एक दूसरे की एनर्जी से आप दोनों इंडिविजुअली भी बहुत ग्रो करोगे। लाइक अगर हम टू पीपल गेट मैरिड, तो उनके स्टार्स प्लैनेट्स ऐसे वो चीज़ होती है, तो उससे आपके फ्यूचर स्पाउस को आपसे फायदा होगा, आपको आपके फ्यूचर स्पाउस से फायदा होगा। तो इट विल लाइक यू बोथ विल राइज टुगेदर एंड it will be a really lovely bond. This is for the reading, my dear pile 1. I hope you like my video. Please like, comment, share and subscribe to my channel. And if you want personal readings, you can surely DM me on my Instagram @cherubayavni. Bye my lovely souls. Bye bye my pile 1. Radhe Radhe. Hello my dear pile 2 people. So today we have you as my pile 2, and we'll see that how will your future spouse confess their love to you, and some additional message that क्या trigger करेगा आपके future spouse को आपसे अपना love confess करने के लिए। So I've already shuffled the cards. The cards are the Devil, the Hierophant, Ten of Coins, the Emperor, Ten of Swords, Five of Coins, Four of Wands, and Seven of Cups. Even before I was shuffling the cards, I was getting this kind of intuition कि before meeting you, before getting into that zone where your future spouse आपसे जाके confess करेंगे, your future spouse might be going through some kind of transformation in their life, and like किसी चीज़ से वो बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा invested होंगे आपके future spouse, and it didn't work out for the best. तो उस काइंड ऑफ वो हार्ट ब्रोकन एनर्जी से, वो जिद से आपके फ्यूचर स्पाउस हटे होंगे एंड हील हो रहे होंगे। उस प्रोसेस में वो आपको मिलेंगे, एंड वो ही प्रोसेस आगे आगे कैसे जाएगा, आपको कन्फेस करेंगे लव, वो मैं आपको बताऊंगी। बट इट इज़ लाइक आपके फ्यूचर स्पाउस को ना ऐसा फील होता होगा कि ये थोड़े ना कुछ होता है, एक काइंड ऑफ वो वाइब नहीं होती कि लव थोड़े ना कुछ होता है, फ्यूचर स्पाउस क्या होता है, ये पार्टनर क्या होता है, आई डोंट बिलीव इन लव, वो वाली काइंड ऑफ एनर्जी में होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस। बिकॉज कुछ स्टबर्न ऐसे उनके थॉट्स होंगे कि वो जा ही नहीं रहे होंगे उनके दिमाग से, तो बट फिर वो बाद में उनकी पर्सनैलिटी बन गई। आई एम नॉट सेइंग दैट इट इज़ टोटली अबाउट लाइक अ बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड, इट बी लाइक कि उनको फैमिली में किसी के साथ वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड थे, एज इनकी उनके ब्रदर या सिस्टर, ठीक है, और उन्होंने उनके साथ ठीक बिहेव नहीं करा, या फिर हाउ पीपल फाइट ओवर प्रॉपर्टीज, हाउ पीपल फाइट ओवर स्मॉल थिंग। तो उन चीज़ से फिर उनको ऐसा फील हो रहा होगा आपके फ्यूचर स्पाउस को कि मेरे लिए क्या कोई नहीं है, मेरे लिए तो कोई है ही नहीं है। तो टफ बनने की कोशिश, और वो वाली फीलिंग की आई डोंट गिव अ डैम अबाउट लव, एंड वो वाली काइंड ऑफ फीलिंग एनर्जी मुझे दिख रही है आपके फ्यूचर स्पाउस में। तो उसके बाद जाके कहीं उनको आपकी वार्मथ फील होगी, एंड देन योर फ्यूचर स्पाउस इज गोइंग टू कन्फेस देयर लव टू यू। बट आप दोनों का ना मुझे कार्मिक पैटर्न दिख रहा है, जो कि आपको भी हील करेगा एंड आपके फ्यूचर स्पाउस को तो हील करेगा ही करेगा। ये कन्फेशन या ये बॉन्ड ही इसलिए बनेगा कि आपको जो भी आपका कर्मा है एक दूसरे से बैलेंस करने का, वो चीज़ होगी। लाइक
एक कर्मा हम लेके चल रहे होते हैं एंड फिर नेक्स्ट जो बॉन्ड शुरू होगा दैट विल वेरी ब्यूटीफुल। ओके, सो अब जैसे आपके फ्यूचर स्पाउस को पहले वो ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड में होंगे, ठीक है, बट ग्रेजुअली क्या होगा, आपके फ्यूचर स्पाउस ना आप ही की डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करने लग जाएंगे कि अगर आप हैप्पी होते हो तो आप कैसे बिहेव करते हो, अगर आप सैड होते हो तो आप कैसे बिहेव करते हो। एंड आई एम सीइंग दिस काइंड ऑफ एनर्जी कि जहाँ पे इट विल लाइक कि आप सेम प्लेस पे हो बट आपको नहीं पता है कि ये पर्सन भी यहाँ पे नियर बाय ऑफिस में काम करते होंगे, या फिर उनका आना जाना होगा जहाँ पे आप काम करते हो या जहाँ पे भी आप रहते हो, वहाँ से ना जो भी आप जिस भी स्टेज पे हो भी लाइफ के, वहाँ पे एनर्जी मुझे ऐसी लगी कि आपके फ्यूचर स्पाउस का ना आना जाना है वहाँ पे, लाइक कभी ना कभी आपके फ्यूचर स्पाउस वहाँ पे आएंगे, फ्यूचर में आएंगे, ठीक है, बट मिलोगे नहीं, आप मिलोगे तभी जब आपका डिवाइन टाइमिंग होगा। लाइक एक काइंड ऑफ सेंस ऑफ वो चीज़ है कि हाँ आप दोनों में सिमिलैरिटी भी है बट नहीं भी है, क्योंकि अभी वो चीज़ हुई नहीं है, होनी है। And with the 10 of coins and the 10 of swords it will be like 10 of coins and 10 of swords it will be like कि आपका जो भी हीलिंग ट्रांसफॉर्मेशन फेज होगा, जो आपके फ्यूचर स्पाउस का भी चल रहा होगा और आपका भी चल रहा होगा, आफ्टर कन्फेसिंग देयर लव टू यू इट विल बी फिनिश्ड एंड देन अ न्यू ब्यूटिफुल रिलेशनशिप विल स्टार्ट। फ्रॉम दैट आई मीन कि आपके फ्यूचर स्पाउस जब ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से निकलेंगे देन दे विल रियलाइज कि दे लाइक एवरी पर्सनैलिटी ऑफ यू, दे अडोर यू अ लॉट। उनको ऐसे लगेगा कि अगर आप इसको गुस्सा भी कर रहे हो ना तो आप तभी गुस्सा करते हो जब सामने वाले की ज़्यादा गलती हो, एंड दिल बी लाइक कि हाँ आप ही सही हो, आप ही सही हो, आप ही सही हो। वो एक एनर्जी होती है कि आप तो गलत हो ही नहीं सकते, तो आपके फ्यूचर स्पाउस को वो एनर्जी बहुत आ रही होगी। देन दिल बी लाइक कि मैं तो ऐसा नहीं हूँ, मैं क्यों किसी की साइड ले रहा हूँ, अभी मुझे तो कंटेक्स्ट भी नहीं पता। अगर आपकी सपोज किसी के साथ फाइट भी चल रही होगी ना, या फ्यूचर स्पाउस विल लाइक कम रनिंग कि नहीं 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 क्या हो गया क्या हो गया, आपकी गलती तो है ही नहीं, आपकी गलती तो है ही नहीं है। तो वो काइंड ऑफ एनर्जी मुझे फील हो रही है कि स्टार्टिंग में ना आपके फ्यूचर स्पाउस आपको इम्प्रेस करने की कोशिश बहुत करेंगे, जो आपको फील भी होती रहेगी, ठीक है। एंड आप अपने फ्यूचर स्पाउस को बहुत जल्दी गिवन करने वाले हो, लाइक काफ़ी जल्दी आप मान जाओगे अपने फ्यूचर स्पाउस की लाइक जो भी उनकी एनर्जी होगी, जो भी परसू वाली एनर्जी है, आप काफ़ी जल्दी गिव इन कर दोगे आप उनके अंदर। एंड ये जेन्युइन है, वो अपने ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से निकले, आप अपने ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से निकलो, आप दोनों हील्ड वर्जन्स हो, ठीक है। उसके बाद अगर आप एक न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट करो तो उसमें कुछ गलत नहीं है, एंड दैट इज़ फॉर श्योर, लाइक यही करना चाहिए। तो आपके फ्यूचर स्पाउस विल बी लाइक कि हाँ आप ही सही हो, आप ही सही हो, एंड देन अदर्स विल बी लाइक कि ये पर्सन तो कभी भी किसी को अटेंशन भी नहीं देते, बिकॉज वो एक वो एनर्जी में थे ना कि लव क्या होता है, वो क्या होता है। देन आपके फ्यूचर स्पाउस को भी ऐसा होगा कि मैं तो कभी किसी को इतनी अटेंशन देता ही नहीं हूँ या देती ही नहीं हूँ, तो मैं इतनी अटेंशन क्यों दे रही हूँ किसी को। देन फैंटासाइज करना आपके बारे में सोचना कि ये चीज़ तो आपको पसंद है, ये चीज़ तो उसको पसंद है। देन लाइक कि मेरे को कैसे याद है, कि मेरे को कैसे पता है, बिकॉज वो ऑब्जर्वेशन उन्होंने बहुत रखी ना, तो ऑब्जर्वेशन करते करते उनके दिमाग में वो चीज़ बैठ गई कि हाँ आपके फ्यूचर स्पाउस को पता लग गया होगा कि हाँ आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, ऑब्जर्वेशन पावर से अपनी। फिर दिल बी लाइक कि हाँ आप एक ऐसे पर्सन हो जिनके साथ वो अब जो अपना हील पीरियड एक इतना धोखा और इतना वो एनर्जी वाली हार्ट ब्रोकन वाली एनर्जी के बाद आप उनको ऐसे लगोगे, आप उनको एक ऐसी फीलिंग होंगे कि हाँ आई कैन ट्रस्ट हिम, आई कैन ट्रस्ट हर। और वो एनर्जी उनको ऐसे लगता था, ऐसा लगेगा कि ये एनर्जी लंबी जाएगी, एक ये ब्यूटीफुल बॉन्ड लंबा जाएगा, लॉन्ग लास्टिंग होगा, जहाँ पे फैमिली किड्स एवरीथिंग लवली एनर्जी विद द 10 ऑफ कॉइंस। इट बी लाइक कि ऐसा ही होने वाला है। योर फ्यूचर स्पाउस विल नो। फिर उसके बाद हाउ विल दे कन्फेस देयर लव टू यू, ये तो ट्रिगर करेगा, वो चीज़ ट्रिगर करेगी उनको कि हाँ दे विल हैव टू कन्फेस टू यू, बिकॉज दे विल बी लाइक कि नहीं। सो आई एम सेइंग कि आपके फ्यूचर स्पाउस तो हील हो जाएंगे आपकी एनर्जी से, बट आप अभी भी उस एनर्जी में होगे जहाँ पे आप अपने थोड़ा सैड फीलिंग मुझे ऐसी लग रही है कि जैसे आप किसी चीज़ को लेके टेंस्ड बहुत ज़्यादा होगे, एंड गेटिंग मैरिड और गेटिंग इन टू अ रिलेशनशिप विल बी द लीस्ट कंसर्न ऑफ योर्स। विल बी लाइक कि पहले मैं इस प्रॉब्लम से तो निकल जाऊँ, उसके बाद विल सी कि व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन एंड व्हाट इज़ नॉट। तो अगर आपको पता भी होगा कि आपके फ्यूचर स्पाउस दे आर ट्राइंग टू परस्यू यू, यू विल बी इन दिस फीलिंग दैट कि आई डोंट हैव द टाइम और आई डोंट हैव द लग्जरी टू डेट एनीवन राइट नाउ। तो वो एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है, एंड इट बी लाइक कि आपके ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी जिसको आप करते करते यू बी लाइक कि आई डोंट नो व्हाट टू डू एल्स, एंड अब मैं क्या करूँ, वो वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। बट
ग्रेजुअली क्या होगा आपकी फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी में, या फ्यूचर स्पाउस विल ट्राई ग्रेजुअली यही होगा कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको रियलाइज करवाएंगे बिफोर इवन गेटिंग इनटू अ रिलेशनशिप, आपको रियलाइज कराएंगे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम आपके फ्यूचर स्पाउस आपको रेस करेंगे. योर फ्यूचर स्पाउस विल बी लाइक अ बेस्टी टू यू. दिल बी लाइक कि बिफोर बीइंग योर फ्यूचर स्पाउस दिल बी लाइक समवन जहाँ पे आप ओपनली शेयर कर सकते हो. अगर फाइट वाली एनर्जी से पहले मुझे दिख रही थी कि आप अपने लिए फाइट करते हो एंड आप ऐसे ओपन अप हो गए कि आपका भी कोई साथ दे रहा है, आपके पीछे भी कोई खड़ा है, वही चीज़ आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करेगी अपने फ्यूचर स्पाउस की. एंड वही चीज़ आगे जाके लाइक कि हाँ आई डेंट ट्रस्ट एनी रॉन्ग पर्सन, आई ट्रस्टेड द राइट पर्सन फॉर मी. तो वो वाली एनर्जी मुझे दिख रही है. एंड आहिस्ता आहिस्ता ना आपके फ्यूचर स्पाउस will be the person, your go-to person, your future spouse will be your go-to person. आहिस्ता आहिस्ता आपके फ्यूचर स्पाउस को फीलिंग्स तो आपके बारे में पहले ही आ जाएंगी, बट उनको ये भी पता लग जाएगा कि अभी आप एक रिलेशनशिप के लिए, आप एक बॉन्ड, एक कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं हो. सो ही और शी विल बी अ फ्रेंड टू यू. दे विल ट्राई देयर मोस्ट बेस्ट कि वो आपको कैसे हेल्प कर सके, आपको कैसे मोटिवेट कर सके. अगर आपका बर्थडे हो और आपको ऐसे कि नहीं यार मेरे को बहुत ज़्यादा काम है, मुझे नहीं करना, देन विल लाइक कि नहीं छोटा स्मॉल सेलिब्रेशन तो होना चाहिए, जस्ट द टू ऑफ अस. एंड दिल बी लाइक आपको ऐसे क्या होगा, एक्शंस मैटर, आपको एक्शंस फील होंगे अपने फ्यूचर स्पाउस के. एंड देन यू स्टार्ट ओपनिंग अप टू हिम और हर. तो वो ही उनके लिए एक काइंड ऑफ विक्ट्री होगी कि हाँ, कि अगर अब आपने उनको ओपन अप करना शुरू करा है अपने फ्यूचर स्पाउस के आगे, आपने ओपन अप करना शुरू करा है. एंड दिल बी लाइक कि हाँ ओके सो माई रोड, they'll start opening up themselves कि वो भी अपने आप को प्रॉपर एक खुली किताब की तरह आपके सामने रख देंगे जब आप उनको अपनी खुली किताब की तरह अपने सामने रख दोगे अपने आप को उनके सामने. वो मुझे एनर्जी दिख रही है. बट योर फ्यूचर स्पाउस विल बी द वन कि बेशक उनको फीलिंग्स होंगी आपके लिए, बट दिल बी लाइक they'll hide their feelings for sure. They are going to hide their feelings until and unless आप कोई जाके वो ना दो, उनको साइन ना दो कि दैट यू आर इंटरेस्टेड इन दिस पर्सन एज वेल, बिकॉज दे आर लाइक कि आप अभी उस हीलिंग एनर्जी में हो एंड दे डोंट वांट टू प्रेशराइज यू. एंड दे विल बी लाइक कि उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर होगा. सो आपके फ्यूचर स्पाउस को ऐसा लगेगा कि ठीक है, जब तक आप रेडी नहीं होगे आई नॉट डू एनीथिंग. एंड देन वो कुछ भी नहीं होगा. तो तभी मैं आपको बोल रही हूँ ना, आपको गिव इन की एनर्जी बहुत ज़्यादा जल्दी आ जाएगी, बिकॉज यू विल बी लाइक रियली ईगर कि ठीक है मैंने एक बार मना कर दिया, बट वाई इजंट दिस पर्सन ट्राइंग अगेन. तो वो आपके पर्सन ट्राइंग अगेन कर रहे होंगे, बट दे विल ऑल्सो बी गिविंग यू सम काइंड ऑफ स्पेस कि जहाँ पे आप फ्री फील करो. आपको ऐसा ना लगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं एंड ऐसे करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको दबाने की कोशिश कर रहे हैं. तो वो चीज़ मुझे दिख रही है कि आपने सोचा होगा कि आपके फ्यूचर स्पाउस ऐसे कन्फेस करेंगे, बट योर फ्यूचर स्पाउस इज लाइक आई एम रिस्पेक्टिंग यू, आई एम रिस्पेक्टिंग योर चॉइसेस, आई एम रिस्पेक्टिंग यू, योर एक्शंस, योर थॉट्स, वट एवर. तो उस एनर्जी में होंगे. तो आपके फ्यूचर स्पाउस को ना आपको बहुत सारे हिंट देने पड़ेंगे कि नो आई एम इंटरेस्टेड इन यू, अब यू हैव टू कन्फेस टू मी, यू हैव टू कन्फेस टू मी. एंड देन योर फ्यूचर स्पाउस विल लाइक ओ माई गॉड यू वांटेड टू से दिस, आप ये कहना चाहते थे. एंड फिर जाके आपके फ्यूचर स्पाउस कहीं जाके आपको कन्फेस करने वाले हैं. एंड विद द 2-4 of wands, see the stability kind of thing. So I also feel that your future spouse is going to do something online for you with the 4 that the Rahu, कुछ तो ऐसा करेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, लाइक कोई एक टेक्नोलॉजी का यूज करके, लाइक कुछ भी हम कह लो, कोई प्रॉपर आपके लिए वीडियो बना के, कुछ बैनर लगवा के, या कुछ तो ऐसा करेंगे जो टेक्नोलॉजी वाइज लाइक या फ्यूचर स्पाउस कुड बी रियली पॉपुलर. तो वो अपने इंस्टाग्राम पे आपका, या जो भी वो सोशल मीडिया ऐप यूज़ करते हैं, उस पर आपका एक पोस्ट डाले कि आई एम इन लव विद हर, शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, शी इज़ माई एवरीथिंग. एंड दैट्स हाउ दे विल कन्फेस टू यू. इट विल बी जस्ट फॉर बोथ ऑफ यू. आप दोनों के लिए ही होगी वो चीज़. अगर आप लोग कहीं बाहर भी जाओगे, सिर्फ आप दोनों ही होगे. बट इस चीज़ का एक्सप्लोरेशन काफ़ी लोगों को पता भी लगेगा, बिकॉज वो एनर्जी आपके फ्यूचर स्पाउस की मुझे ऐसी लग रही है कि आपके फ्यूचर स्पाउस ना थोड़े पॉपुलर काइंड ऑफ जगह पे हो गए, या फिर जहाँ पे वो काम करते हैं उनके कलीग्स को पता होगा, उनके कलीग्स ही उनके फ्रेंड्स होंगे. तो आपके फ्यूचर स्पाउस के कलीग्स को पता होगा कि हाँ यू बोथ आर डेटिंग है, समथिंग लाइक दैट. जहाँ पे मुझे आपकी एनर्जी दिख रही है, यू विल ट्राई टू कीप इट अ सीक्रेट, और यू विल ट्राई टू कीप लो ओनली, बिकॉज आपको इतना ज़्यादा शो ऑफ नहीं पसंद है, आपको इतना ज़्यादा वो नहीं चाहिए. लाइक ठीक है, 2-3 लोगों को पता है, आपके फ्रेंड्स को पता है, ठीक है, पर इतना ज़्यादा शो ऑफ वाली एनर्जी मुझे नहीं दिख रही है आपकी. बट आपके फ्यूचर स्पाउस विल लाइक रियली
प्यार में पगलू काइंड ऑफ फीलिंग आ रही है आपके फ्यूचर स्पाउस की लेटर ऑन। एंड ऐसे ही वो आपको कन्फेस करने वाले हैं, आपने सोचा भी नहीं होगा वैसे वाले तरीके से, जितना भी आपने सोच रखा है ना उससे डबल ही करेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस। दिल भी लाइक कि कुछ तो ऐसा करेंगे जहाँ पे आपको ऐसे ना फील होएगा कि हाँ कि मेरे लिए किसी ने ऐसा कुछ करा है मेरे लिए। तो वो वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। आई वांट टू शफल सम मोर कार्ड्स। हाउ विल पाइल टू फ्यूचर स्पाउस कन्फेस देयर फीलिंग्स टुवर्ड्स पाइल टू। 7 of coins, 4 of swords, फॉर श्योर आपके फ्यूचर स्पाउस रिस्पेक्ट करेंगे आपकी बाउंड्रीज को, आपके यू नो आई एम गेटिंग दिस फीलिंग कि कुछ तो ऐसी चीज़ होगी जो आपको पसंद नहीं आएगी अपने फ्यूचर स्पाउस के बारे में, एंड वो अननोइंगली होएगी। आपको ना आप अपने फ्यूचर स्पाउस को मिसअंडरस्टैंड करने वाले हो देयर इंटेंशंस टुवर्ड्स यू। लाइक अगर वो आपके फ्यूचर स्पाउस आपको कन्फेस भी कर रहे हैं ना अपनी फीलिंग्स, आप उन पर बिलीव नहीं करोगे। आप पहले उस एनर्जी में होगे कि कन्फेस टू मी आई एम रेडी फॉर इट। बट कुछ ऐसा होगा जहाँ पे आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी एंड आपके फ्यूचर स्पाउस को इस बात की खबर नहीं होगी। तो वो चीज़ मुझे ऐसे लग रहा है कि एकदम से मेरे को ऐसे इंट्यूशन हो रही है कि आप सोच रहे होगे कि फिर मैंने गलत बंदे पे ट्रस्ट कर दिया, एंड अब तो मेरे को ना डिसीजन नहीं लेना आता, मेरे को पता ही नहीं लाइफ के बारे में। बट इट विल बी लाइक कि वो कार्मिक था ना, थोड़ा ख़त्म होना था वो कार्मिक चीज़ को, तो उसके लिए टाइम लग गया, इसीलिए थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज होएगी। बट ये डिफ़िकल्टीज आप और आपके फ्यूचर स्पाउस का योर फ्यूचर स्पाउस विल रियलाइज, वो सोचेंगे कि क्या हुआ कैसे हुआ, आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, एंड देन योर फ्यूचर स्पाउस इज गोइंग टू फाइंड अ सोल्यूशन, एंड आफ्टर दैट यू बोथ विल बी टुगेदर with such a lovely proposal that your future spouse is going to make sure that आपको एक प्यारा proposal मिले to even apologize even if it won't be their fault, because एक एनर्जी आप मेरे को देख रहे हो, जैसे मैंने कहा ना आपको पॉपुलर एनर्जी बहुत आ रही है आपके फ्यूचर स्पाउस की। सो देयर विल बी पीपल हु विल ट्राई टू मेक यू फील लो कि आप उनके डिजर्व नहीं करते हो और आप दोनों की कंपैटिबिलिटी नहीं है। वो वाली चीज़ मुझे ऐसे दिख रही है कि पीपल विल ट्राई टू डीमीन यू, एंड जहाँ पे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो होगा उस टाइम पे, क्योंकि आप एक पीरियड से जा रहे हो ना, तो एकदम से आप आज कुछ हुआ है तो आप कल तो एकदम से आप हैप्पी रख जाओ, तो वो तो फिर प्रिटेंड करना ही हो गया, वो तो सारे रोज़ ही करते हो। तो वो चीज़ एनर्जी है, तो वो आपको ऐसे लगेगा कि नहीं यार मैं तो डिजर्व ही नहीं करती, मुझे दूर हो जाना चाहिए। बट योर फ्यूचर स्पाउस विल लाइक कि नहीं ये चीज़ ऐसी नहीं है, एंड दे विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू, दे विल ट्राई टू ब्रिंग एविडेंस कि नहीं ये चीज़ ऐसी नहीं है, दिस पर्सन वॉज ट्राइंग टू डेलिबरेटली डू इट। तो वो चीज़ आहिस्ता आहिस्ता करके फिर आपके फ्यूचर स्पाउस अपने आप दोबारा कन्फेस करेंगे, एंड देन यू विल फाइनली एक्सेप्ट योर फ्यूचर स्पाउस प्रपोजल फॉर श्योर। It was such a lovely energy, but my dear pile 2, whatever you're going through, just remember that tough times don't last, tough people do. Okay, this is it for the reading, my dear pile 2. I hope you liked my video. Please like, comment, share and subscribe to my channel. And if you want personal readings, you can surely DM me on my Instagram @terubayavni. And also please remember that this is a general reading, so please take what resonates and leave what doesn't. Bye my lovely souls. Radhe Radhe.